ہم لائحہ عمل میں لائیں گے، کیونکہ ہمارا جو کام ہے دیگر سسٹر ایجنسیز کے ساتھ کام کرنا ہے، تو ہم اس کو پھر آگے فردر پروسیڈنگ کے لیے جو لوکل پولیس ہے یا دیگر جو انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کے ہینڈ اوور کر کے اس کام کو پایہ تکمیل تک پہنچاتے ہیں۔ گڈ انف سر، بہت ہی تفصیل سے آپ نے اس کا جواب دیا۔ سر دوسرا یہ بات پوچھنا ہے کہ آج کل کیونکہ شوگر کین کا سیزن ہے تو یہ اوور لوڈ جو ٹرالیاں ہوتی ہیں، مطلب اس کے حوالے سے کل بھی میں دیکھ رہا تھا، کل میں لاہور سے ٹورڈز اوکاڑا آ رہا تھا یہ جی روڈ پہ، تو وہاں پہ میں نے دیکھا کہ اکثر جو حادثات ہیں ٹائر آٹ کھلنے سے ہو رہے ہیں، یا مطلب ڈرائیور کو نیند آ رہی ہے، یا اوور لوڈنگ کی وجہ سے کوئی ایسا مسئلہ آیا ہے جس کی وجہ سے بریک فیل ہو گئے ہیں، تو وہ ٹرالی جو ہے وہ الٹ گئی ہے اور وہ ساری روڈ بند ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو ایک اتنا اوور لوڈنگ کی جو کیپیسٹی ہے، اس کو کیا مینٹین موٹر وے پہ کیا جاتا ہے کہ اگر جو ٹرالی جا رہی ہے، عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ موٹر وے پہ تو ٹرالیاں بہت کم جاتی ہیں، یا چلیں جن کو لمبے روٹس پہ جانا پڑتا ہے اس پہ جاتی ہیں، لیکن جی ٹی روٹ کے اوپر اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ لوگ جو کہ اوور لوڈنگ ہونے کی وجہ سے موٹر وے پہ نہیں جا پاتے، وہ جی ٹی روڈ کے اوپر آ جاتے ہیں۔ تو موٹر وے پہ سر اس کا کیا سسٹم ہوگا، آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے لوگوں کے اس حوالے سے؟ جی قریش صاحب، بہت زبردست آپ کی آبزرویشن ہے، بالکل یہ آج کل شوگر کین کا سیزن ہے، کرشنگ سیزن ہے۔ اصل میں ہوتا کیا ہے کہ یہ جو ٹرالیز ہیں نا فارمرز، یہ روڈ پہ تو پہلے آتے ہی نہیں سارا سال، جب یہ شوگر کین کا سیزن شروع ہوتا ہے نا تو یہ روڈ پہ نکل آتے ہیں۔ ان کی گاڑیاں میکینیکلی انفٹ ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے جو آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ کبھی ٹائر کھلے ہوئے ہیں، کبھی ایکسل ٹوٹے ہوئے ہیں، روڈ پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ تو ہم ان کے خلاف اس معاملے میں بڑا ہم نے ایکشن لیا ہوا ہے۔ ہم نے سختی سے بریف کیا ہوا کہ ایک تو یہ نائٹ کو ٹریول نہیں کریں گے، ڈے ٹائم میں ٹریول کریں۔ جو گنے کا پھیلاؤ ہے اس کو ودن پرسکرائب جو لمٹس ہے ٹرالی کی اس میں رکھیں، اور اگر کوئی تھوڑا بہت باہر نکلا، چونکہ گنا ہے وہ ایک اس طرح کا سامان ہے نہیں کمپیکٹیبل کے اندر آ جائے، اگر تھوڑا بہت باہر نکلا ہوا ہے تو ہم ان کو سجیسٹ کرتے ہیں کہ وہ جو لوڈ آپ کی لمٹ سے باہر ہے وہاں پہ آپ ریڈ جھنڈیاں، ریڈ کپڑے، یا اگر رات کا ٹائم ہے تو آپ ہینگنگ لائٹس جو ہیں وہ ہم نے جو ہائی وے پر جتنے بھی الیکٹریشین بیٹھے ہوں ان وہاں پہ ہم نے رکھوائی ہوئی ہیں، وہ آپ لگوائیں، تاکہ جو بھی گاڑی آپ کے پیچھے سے آ رہی ہے یا آپ کو کراس کر رہی ہے تو اس کو وہ لمٹس جہاں تک وہ آپ کی ایکسٹینڈ ہیں آپ کے لوڈ کی ان کا اندازہ ہو جائے اور وہ کسی بھی انٹورڈ انسیڈنٹ سے بچایا جا سکے۔ گڈ سر، بہت ہی خوبصورت سی بات آپ نے کی۔ آئی ہوپ کہ لسنرس کو یہ تمام چیزیں ان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں۔ دوران ڈرائیونگ آپ کو لگ رہا ہے کہ جہاں آپ کو کہیں دشواری کا سامنا کرنا پڑا ہے، آپ گوگل پلے اسٹور پہ جائیں، ایپ کو ڈاؤن لوڈ کریں اور وہاں پہ آپ کو ساری چیزیں نظر آنا شروع ہو جائیں گی۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ ہمارا جو ملک ہے پاکستان، وہ روڈز انفراسٹرکچر کے حوالے سے جو موٹر وے ہے اس کو ہم ایز کمپیئر ٹو ویسٹرن کنٹریز کریں تو کتنا ڈفرینس آتا ہے اس کی مطلب پولیسنگ لائن کے اندر؟ اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ جو ہماری جو پولیس ہے اس کے طرح امتیاز میں، اور ساتھ میں جو باہر والی جو کنٹریز کی جو پولیس ہے ان کے درمیان میں کیا فرق آتا ہے؟ مطلب اکثر میں نے یہ دیکھا ہے، کیونکہ سوال کے اندر ہی میں ایک چیز آپ سے پوچھ لیتا ہوں، بلکہ بتا بھی ساتھ شیئر بھی کر دیتا ہوں کہ ہماری جو پاکستان آرمی ہے اس کو باہر ڈیپوٹیشن کے لیے بھیجا جاتا ہے، تو کیا ایسا ہے کہ ہماری جو پولیس ہے اس کو کمپیئر کیا جاتا ہو ڈفرینٹ ایریاز میں یا ڈفرینٹ اسپیکٹس آف لائف میں، سوشل لائف میں، یا ان کا جو سماجی بیہیویئر ہے اس کو بھی ساتھ میں دیکھا جاتا ہے، یا صرف جسٹ ان کو ایک مطلب پیٹرن دے دیا جاتا ہے کہ آپ کی یہ ڈیوٹی ہے، آپ کی یہ سیلری ہے اور آپ نے اس طرح سے کام کرنا ہے؟ مطلب ان کو اور باہر والی پولیس کو ہم کیسے کمپیئر کر سکتے ہیں؟ جی قریش صاحب، بالکل ٹھیک آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا۔ اصل میں جو ہمارا کنٹری ہے نا، یہ ہم ابھی ڈیولپنگ کنٹریز کے لائن میں ہیں۔ ہماری اکانومی ابھی جو ہے نا وہ اس اسپیس سے نہیں موو کر رہی جس طرح آپ ویسٹرن کنٹریز کی بتا رہے ہیں بات۔ ابھی یہ دیکھیں جو نئے موٹر ویز بن رہے ہیں، سی پیک میں آ رہے ہیں، اس میں جو ہے نا ان کو سمارٹ موٹر ویز ہم کہتے ہیں۔ وہاں پہ جو ٹیکنالوجی بیسڈ سسٹم ہے وہ لگایا جا رہا ہے۔ M3 M4 پہ ابھی جو سپیڈ چیکنگ جس طرح ہائی وے پہ ہو رہی ہے یا M2 پہ کہیں ہو رہی ہے، وہ جو مینول ہے جہاں پہ ہم کیمرہ انسٹال کر کے چیکنگ کر رہے ہوتے ہیں، اب وہ آہستہ آہستہ اس کو ختم کیا جا رہا ہے۔ اب یہ جو ہے وہ پورٹیبل کیمرے ہوں گے، اوپر فکس کیے ہوں گے، انہی سے آپ کی سپیڈ میئر ہوگی اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ میری سپیڈ کہاں پہ زیادہ تھی اور کہاں کم تھی، آپ کو آئیڈیا نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب ہے یہ تاکہ جو روڈ یوزرز ہوں وہ اپنی سپیڈ کو لمٹس میں رکھیں۔ اب جس طرح یہ ٹیکنالوجی آتی جائے گی تو ڈیفینیٹلی ہمارا بھی جو سٹینڈرڈ ہے وہ ویسٹرن کنٹریز کے مطابق جائے گا۔ ابھی چونکہ فائنینشیل کنسٹرینٹس ہیں، پورا ملک ہی معاشی جو صورتحال ہے اس سے ناگزیر سی ہے، بہت پور ہے، اور اوپر سے کووڈ-19 نے تو اور بھی ہمارے جو معاشی حالات ہیں ان کو ڈاؤن کر دیا ہے۔ تو انشاءاللہ جیسے جیسے ہماری معاشیات بہتر ہوگی، ڈیفینیٹلی جو
وہ آپ کو بجٹنگ ہے جو ڈپارٹمنٹ کو ہوگی، اس میں ٹیکنالوجی بھی زور دیا جائے گا. جب ٹیکنالوجی آئے گی ہمارے پاس، ہم اسمارٹ موٹر ویز پہ جائیں گے. ہماری فورس بھی اسی ماڈرن ویز میں اس کو جب ٹرین کیا جائے گا تو انشاءاللہ ان دا فیوچر ہم ضرور جو ہے نا وہ آپ بتا رہے ہیں جس طرح کہ ویسٹرن کنٹریز کا کرائٹیریا جو ہے ہم انشاءاللہ اس کو میٹ کریں گے انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ سر. اچھا سر، یہ پوچھنا ہے کہ آپ سے کہ ہم جس طرح سے موٹر وے پولیس کو اکثر دیکھتے ہیں، آپ کی یونیفارم بہت اچھی ہوتی ہے، مطلب آپ سے بات کرنے میں ہمیں کسی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، تو یہ بھی ایک بڑی پازیٹیو چیز ہے. اس میں سر ایک اور چیز جو کہ میں آپ سے چاہ رہا تھا کہ احمد پور شرقیہ کا جو سانحہ ہوا جس پہ راؤنڈ اباؤٹ 255 کے قریب ڈیتھ رولز ریکارڈ کی گئی ہیں، تو یہ ایک بہت بڑا اندوہناک سانحہ تھا پوری قوم کے لیے، بلکہ پوری دنیا میں اس طرح کے جو سانحات ہوتے ہیں عموماً افریقہ میں بھی میں نے دیکھا کہ 400 کے قریب لوگ کنٹینرز کے پاس اکٹھے ہوئے تھے. تو سر اس پہ آپ کیا میسج دینا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی ایسی صورتحال ہے کہ موٹر وے والوں کا تو اپنا ایک رول ہے، ڈیفینیٹلی وہ اپنا رول پلے کرتے ہیں، بٹ عوام کو ان کے لیے کیا میسج ہے کہ ان کو کیا کرنا چاہیے اگر اس طرح کا معاملہ ہے سامنے آ رہا ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ جی بالکل، آپ نے وہ بڑے دردناک جو سین وہ ابھی آپ نے جب بات کی تو میرے سامنے تھے، جب 250 لوگوں کی جو لاشیں تھیں وہ برن تھیں، اور بہت ہی ابھی تو ایسے جب بندہ دیکھتا ہے تو رونگٹے کھڑے جاتے ہیں. یہ بڑا تکلیف دہ وہ ایک ایونٹ تھا. اصل میں بات یہ ہے کہ جو روڈ پہ ایکسیڈنٹس ہیں نا، اس میں ایک تو ڈرائیور کی غفلت ہے، لیکن اس سے زیادہ جو پارٹ ہے نا وہ آپ کی اگنورینس ہے فرام ٹریفک رولز. اب دیکھیں وہ جو انسیڈنٹ ہوا تھا اس کو پراپر ہم نے مطلب ایک کوننگ کی ہوئی تھی، پراپر اس کو ٹیک اوور کیا ہوا تھا، ایجنسیز بھی موجود تھیں. وہ جو لوگ وہاں پہ اکٹھے ہو گئے تھے ان کو بارہا دفعہ سمجھایا گیا کہ بھائی یہ کسی ٹائم بھی خدا نخواستہ کسی بھی جو ہے نا آپ اگر اس کو غلطی سے مس ہینڈل کریں گے اس کو، اس واقعہ کو، تو یہ کوئی بھی کسی بھی انٹروورڈ انسیڈنٹ میں یہ بلاسٹ ہو سکتا ہے. تو لیکن وہ لوگ اس قدر نیگلیجنٹ تھے، اس قدر وہ میں کہتا ہوں کہ بس آپ نہ پوچھیں. وہاں پہ میں ڈیوٹی بھی اپنی کر کے آیا ہوں تو ان لوگوں میں لٹریسی ریٹ جو ہے نا وہ بہت پور ہے. وہ ایک تو وہ بات آپ کی مانیں گے نہیں، جس طرح وہ یہ جو ہم جاتے ہیں قبائلی سسٹم ہے وہی بھی وہاں پہ وہ جو سرائکی بیلٹ ہے ابھی وہاں پہ اتنا لٹریسی ریٹ اچھا نہیں ہے. تو ان کو ہم نے کافی سمجھایا. ہماری جو وہاں پہ ہمارے آفیسر ڈیپیوٹ تھے، ایون کہ لوکل پولیس کے بھی لوگ تھے، ریسکیو بھی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ اتنے وہاں پہ گمبھیر صورتحال ہوگی، اتنا رش ہو گیا، مور دین 1000 پیپل اکٹھے ہو گئے. تو وہ اب دیکھیں کیا وہ 1-2 لیٹر جو انہوں نے پیٹرول اٹھایا ہوگا اور وہ بھی امپیور تھا، اس کو کیا انہوں نے کرنا تھا. لیکن وہ جن کی لسٹ تھی، ان کی اگنورینس تھی، اس کی یہ نتیجہ نکلا کہ وہ اتنے لوگ جو تھے، اتنے خاندان جو تھے وہ اپنے سہاروں سے وہ بے سہارا ہو گئے. جی بالکل سر، آپ نے بہت تفصیل سے نقشہ کھینچا اس چیز کا، اور آئی ہوپ کہ یہ ساری باتیں نہ صرف کہنے کے لیے سننے کے لیے بلکہ عمل کرنے کے لیے. کہتے ہیں کہ انسان کے پاس علم کا سمندر ہو، عمل کا ایک قطرہ اس سے بہتر ہے، اور عمل کا ایک سمندر ہو، اخلاص کا ایک قطرہ اس کے لیے بہتر ہے. تو اخلاص جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہدایت کے چراغ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے بڑے بڑے فتنوں کو دور فرما دیتے ہیں. یہاں پہ ایک چھوٹی سی کمرشل بریک ہے، ہم اس کو شامل کرتے ہیں پھر واپس آتے ہیں. آپ کے پیغامات رکنے نہیں چاہیے. ٹیک اٹ اوے. بڑا مزہ بڑا مزہ. تھینک یو سر. میں ماشاء اللہ بڑا ہی سر تقریباً 1 سال ہو گیا میں پروگرام نہیں کر رہا. کل ان کی مجھے کال آئی نا، پرسوں آئی نا کال، میں چھٹی پہ تھا، میں نے پروگرام آپ کا نہیں کرنا تھا. میں نے اسٹیشن مینیجر کو کال کی، میں نے کہا بھائی میں تو چھٹی پہ ہوں تو آپ یہ کر لیں. وہ میرا اسکول ہے وہ میں اس کام میں چھوڑ کے پروگرام بس پروگرام چھوڑ کے نا، ایک تو وہ تھوڑی سی میوزک کی قباحت ہے، میں اسی سے وائٹ کرتا ہوں. گانے تو میرے پروگرام میں بالکل نہیں ہوتے. یہ میں نے اسپیشل پھر ان سے کل میں نے اجازت لی، میں نے کہا جی میوزک میں نے پلے نہیں کرنا، کوئی گانا شانا میں پلے نہیں کر سکتا کیونکہ میں تو اس لائن کو چھوڑ چکا ہوں. یہی ہے کہ اگر کوئی اسپانسر اس طرح کا پروگرام ہوتا ہے اس کے اندر میں آ جاتا ہوں. یہ پھر اسی طرح تھا کہ کل پھر لاہور مصروفیت تھی، لیکن کیونکہ آپ نے جب مجھے کہہ دیا، میں نے پھر اسٹیشن مینیجر صاحب کو کہا، میں نے کہا جی آپ نے کرنا ہے. انہوں نے کہا نہیں آپ نے کرنا ہے. تو وہ پھر میں بس ایسے ہی آیا ہوں، تو یہ بس آپ کے ساتھ ہو گیا پروگرام. ہاں بہت شکریہ. نہیں آپ کی ماشاء اللہ آپ کا تو میں وہ سن رہا تھا باتیں نا آپ کی. اچھا یہ تو اتنا زبردست ایکسنٹ ہے. تو آپ کی ساتھ پروفائل دکھائی، میں نے کہا یہ آپ ایف ایم پہ مطلب وہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ میں لائن چھوڑ چکا ہوں. تو
वेल माशाल्लाह बड़ी खुशी हुई, बड़ा मजा आया जी आपसे कम्युनिकेट करके। बहुत कोई कुरैशी साहब ने और दस दियो कोई ठीक जा रहे हैं, चलो अच्छा हो। ये ना असल में वो कहते हैं ना कि जब आप कुछ करें ना टेक्निकल, तो ये चीज़ें आती रहती हैं। इससे ये होता है कि बंदे में कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। लाइव में ये चीज़ें होती है रेडियो ब्रॉडकास्टिंग में ना, बाहर असल में ना ये होता है सर रेडियो से ही सारी चीज़ें होती हैं। ये हमें नहीं पता, असल में हमारी आवाम को नहीं पता। ये 3G 4G के अंदर फंस के ना ये हमारी आवाम जो है ना बिल्कुल स्पॉइल होती जा रही है। उनको नहीं पता कि ये रेडियो का इस्तेमाल क्या है। ये प्रोग्राम जो है ना ये आवाम को अवेयरनेस देता है। रेस्क्यू 11/22 आवाम को अवेयरनेस देता है। एनिमल हस्बेंड्री का जो महकमा है जिसमें गाड़ियाँ लाइफ स्टॉक की वो बताती है वो किस लिए हैं, लेकिन लोग इसकी तरफ आते नहीं है क्योंकि वो FM सुनते नहीं है। अब जब सुनना शुरू करेंगे तो हम जैसे लोग उनको बताएंगे ना कि भजन ये चीज़ें हैं, आप इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये 0.01% लोगों तक पहुँच रही बातें। बाहर की दुनिया में क्या है, ज़रा थोड़ा सा नेचुरल डिजास्टर आता है वो फ़ौरन अपने ऑन कर लेते हैं, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन या FM ऑन कर लेते हैं। ये बाहर मैंने लोगों को देखा है। अब इंडिया में हालांकि बहुत पसमानदा मुल्क है, उसके बावजूद वहाँ की आवाम FM को सबसे ज़्यादा सुनती है। ये मैं थोड़ी आना चाहूँगा इसमें अगर कोई मतलब बनता है ना किसी को, आप इंस्टॉल करते हैं उसके बाद अपना नंबर देते हैं, नेम और नंबर। अच्छा ये NHMP हमसफ़र है, मैं ये बता देता हूँ। NHMP हमसफ़र जी, आप इसको इंस्टॉल करेंगे, अपना नेम और फोन नंबर लिखेंगे, वो लॉगिन हो जाएगा। उसके बाद इमरजेंसी हेल्प के सिर्फ एक क्लिक करेंगे तो सेंड कर दिया, तो हमारे कंट्रोल पर भी सबमिट हो जाएगा। ये कुरैशी साहब लिख ले सारा, मैंने लिख ली है NHMP। जब आप इसको करेंगे तो आपके साथ ये कनेक्ट हो जाएंगे अगर वो किसी सिचुएशन में आते हैं। जी जिस तरह उन्होंने पहले क्रिमिनल का इस पे विदिन नो सेकंड मैसेज पहुंच फौरन जाएगा, पहुंच जाएगा। क्योंकि अब लॉगिन नेम और फोन से किया होता है। इसमें नेट की क्या फैसिलिटी आएगी कि जो वो लाइन जिसमें जा रही है उसमें इंटरनेट अगर किसी का बाज़ इलाके ऐसे भी इंटरनेट कनेक्ट नहीं होता, ये एक इशू आएगा। ये उधर 130 है। अच्छा उधर 130 तो ऑल ओवर पाकिस्तान, ये अभी लेटेस्ट आ रहे हैं। और अभी वो थोड़ी सी यू फोन से फ्री है। अच्छा यूफोन काफी कॉस्टली मतलब चार्जेस होते हैं, लेकिन अभी वो बात चल रही है पैमरा से कि इसको भी फ्री तमाम जो है ना नेटवर्क। बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक है। ये ट्रैवल एडवाइजरीज में अब चेक करते हैं कौन सा रोड ओपन है कौन सा रोड बंद है। ये मुझे जरा दिखाइएगा, मैं साथ साथ बता दूँ। हाँ ये जो है ना ये बड़ा काम है। ये ऊपर की तरफ चलेगा। अच्छा मैं इस वापस जाना है तो इस तरह करना है। अच्छा चलेगी। बस ये ऐप बता देंगे ना, हाँ जी, हाँ जी। तो वो लोगों को पता चल जाएगा, हाँ, उसको खुद ही बिल्कुल। मतलब एक्टिवेट कर लेंगे। अच्छा जी मैसेज देख रहे हैं कुछ और। ये ना ऐसे लगने से ये खुद ही लाइव चल रही है। आप चाहे नहीं इनको सर को आवाज़ नहीं आएगी तो कैसे पता चलेगा? आवाज में ना ये आवाज इधर से आएगी। अच्छा इधर से आएगी, इधर से नहीं आएगी, आवाज उधर से आएगी। चलो इस तरह कर लाइव चल रही है, आप साहब ने सिर्फ बोलना है तो आप ठीक है। अब वैसे भी कॉल्स मैंने नहीं लेनी अब क्योंकि टाइम हो चुका है, हमारा काम हो जैसे गया। आप लगा रहे थे ना ऐसे कोई आवाज नहीं जा रही। अच्छा चलो कोई नहीं, इस तरह भी ठीक है। अल्ट्रासाउंड फीस 200 रुपए। चेकअप टाइम शाम 4 बजे से ये एक 8 मैसेज बजे आया तक है। रोजाना। इंतहाई मुनासिब डिलीवरी और ये ऑपरेशन फारसी फीस। तदाबीर, इकरार वाले दिन ये मेरा ख्याल आपने पहले हाँ, बता दिया हुआ है। इलाज फोक के वाले से सर कामयाब इलाज के लिए तशरीफ ये लाएं। कुछ 24 चीज़ें हैं। घंटे इमरजेंसी की सहूलत मौजूद है। एड्रेस ये अभी रिसेंटली हम फिर फोक पे बात कर लेते हैं। जी, ठीक है, अभी ये फोक का क्या मतलब होगा, इसमें किस तरह से लोगों ने सफ़र करना है, ये जब मोटर में बंद होती है तो उसका क्या तरीकाकार होता है, मतलब पहले से बताया जाता है या अचानक बंद कर दी जाती हाँ, है? वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की हिदायत पर पेट्रोलियम मसनूआत की स्मगलिंग और गैर कानूनी फरोख्त के खिलाफ एक्शन। $2 अरब सालाना स्मगलिंग और 200 अरब रुपए की टैक्स चोरी रोकने के लिए पाकिस्तान कस्टम्स, जिला इंतजामिया, पुलिस, रेंजर्स और FC की मुश्तरका कार्रवाई का आगाज। पाकिस्तान कस्टम्स एक्ट 1969 के तहत पेट्रोल पंप समेत दीगर जायदादों की जब्तगी, कम से कम 1 करोड़ रुपए जुर्माना। ये मैंने ना कॉल की थी साहिवाल, ये जो इस वक्त प्रोग्राम वहाँ कर रहे हैं ना आप, ये हमारे पहले यहाँ पे वर्क करते थे दिलावेज साहब। ये जब आपका मुझे वो आया ना वीडियो वाला मैसेज है, ये पहले मुझे आ चुका था। ये मैंने उनको कॉल करके मैंने कहा कि यार इस तरह से वो मेहमान है तो अगर आपने करना है तो आप कर लें। उन्होंने फिर खुद ही रब्ता किया मेरा ख्याल उनके साथ, उनको कहा कि आप हमारे प्रोग्राम में आ जाएं। वो मेरा ख्याल 15 बीट में है ना, हाँ 14 में, वो 15 में है। तो वो इसी तरह से उन्होंने भी कहा भी मैं भी फ़ौरन कर लेता हूँ। उन्होंने उनसे रब्ता किया, उनका जी आ गए हमारे प्रोग्राम में। तो आपका तो ऑलरेडी शेड्यूल था, लेकिन उन्होंने फिर अपने तौर पे उनके साथ कर दिया। वो साहिवाल वाले पहले इधर थे।
हाँ जी, वो इधर थे दिल अमीर साहब जिन्होंने वीडियो बनाई हमने है। उनके पास एक दो दफा किया है इधर। अच्छा अच्छा अच्छा। एसन सीड्स की पहचान, कामयाब किसान, एसन सीड्स कारपोरेशन। नहीं ये सर आपकी जो माशाल्लाह कंपेन है ना उससे लोगों को बड़ा फायदा होगा, ओवरऑल जो है ना सारा इसका बहुत फायदा होगा। क्योंकि मैं तो ड्राइवर्स को यही मशवरा देता हूँ कि आप ये जो रेडियो वाले हैं ना ये चलाया करें FM, उसमें हमारे रिकॉर्डेड प्रोग्राम है वो हम उनको दे दें, वो चलाएं ताकि लोग सुने, उनको पता चले कि भी हमने किस तरह से मदद लेनी है या हमने एक दूसरे की मदद कैसे करनी है। अवेयरनेस नहीं है ना, अवेयरनेस आएगी सुनने से आती है चीज़ें, आप सुनेंगे नहीं बोलेंगे नहीं तो वो चीज़ कैसे ही पता चलेगी। यही चीज़ है। ये तो इनको चाहिए कि जितने भी हमारे हैवी ड्यूटी ट्रक्स हैं ना इनका कोर्स होना चाहिए, इनको नेसेसरी कहा जाए कि आप ना ये हमारी ये है इसको आप सुने इस वक्त इतने से इतने बजे तक ये चीज़ें ये लाजमी सुननी है आपने। ताकि इनका कोर्स ले अपने ड्राइवर्स को ना हर 2 मंथ्स के बाद हमारे सेंटर पे भेजते हैं। अच्छा अच्छा कंपल्सरी आप जाओ वहाँ पे ये इनका 1 हफ्ते का कोर्स करवाते हैं। देखा फिर उनकी गाड़ियाँ फिर वो ड्राइवर भी उनके इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के रखते पीछे हैं। लिखा भी होता है हाउ में हाउ में सेफ डिस्टेंस सही है सही है। और ये भी फर्क पड़ता है आपकी बात ठीक है कि जब ट्रेनिंग होगी तो फर्क पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही। मुझे भी आई साहब को दिखाना कि निसाब में ये रोड सेफ्टी हाँ क्योंकि ये ज्यादा सर स्कूलों में ट्रेनिंग हो, स्कूल्स में और कॉलेजेस में ट्रेनिंग इसलिए हो कि यंगस्टर्स जो 18 साल की उम्र की तरफ आ रहे हैं ना वो खुद ब खुद वो कहने नहीं हमने ये चीज़ नहीं करनी जब तक हमें कानून इस चीज़ की जो है ना वो इजाज़त नहीं देता। ਫਿਰ ਜਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੈਂਡ ਕੀਤੀ ਕਲਿੱਪ ਅਸੀਂ ਬਣਵਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਆਲਰੇਡੀ ਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਹਿਸੀਲ ਰਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ 300 ਬੈੱਡ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕੇਬਲ ਤੇ ਜੀ। मैं भाई नु कह रहा है कि साड़ी भी चलवा दो इतने। चलवा देते हैं, मैं सर से बात कर लूँगा इंशाल्लाह। मैंने आपको सेंड कर दिया हाँ, है। वो हम- आपको भेज दे, वो आगे से अपनी वॉइस में चेंज करके हाँ। मुझे फॉरवर्ड कर दे कि मैं इसमें डाल दूँ। बिल्कुल ठीक हो गया, मैं उनको आज ही फॉरवर्ड कर देता हूँ, आप उसको करके फिर कर लीजिए। जी जनाब वंस अगेन वेलकम बैक, दिस इज़ मी आरजे आज़ाद कुरैशी। प्रोग्राम का वक्त बहुत ही कम है लेकिन मुफीद जो गुफ्तगू है वो इतनी ज़्यादा है कि इस पर हम जितनी भी सैर हासिल गुफ्तगू करें उतनी ही कम है। और मैं ये समझता हूँ कि मुझे बड़े अरसे के बाद FM पे आने का मौका मिला, मैं सर का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपकी वजह से मेरी जो नींदें थी वो कम हो गई हैं। और मैं आज संडे था तो मैंने सोचा था कि आज मैं बिल्कुल रेस्ट करूँगा, लेकिन वो रेस्ट इस तरह से हुआ कि मुझे बहुत सारी चीज़ों का आइडिया हो गया जो कि शायद आप लोगों को पहले आइडिया नहीं था, या आइडिया था लेकिन हम उस पर अमल नहीं करते थे। तो ये गुफ्तगू जो है बेसिकली इसलिए होती है, ये अमल की तरफ उभारती है कि आपके पास जो नॉलेज है, नॉलेज इज़ लाइट नॉलेज इज़ पावर, इसलिए कहा जाता है कि जो इल्म आपके पास अल्लाह ने आपको दिया है आप उस पर अमल करते हैं तो बेसिकली वो लोगों की राह निजात के लिए होता है। अब आप ये देखें कि इसमें हुकूकुल इबाद का सबसे बड़ा जो दर्जा है वो ये है कि आप इंसान हैं, अल्लाह ने आपको दूसरों के नफ़ा रसानी के लिए भेजा है। और ये इसीलिए है कि जब आप अपने आप को सेफ़ रखेंगे डेफिनेटली आप दूसरे को सेफ़ रख रहे हैं। तो यहाँ पे मैं ये चाहूँगा कि हमारे जितने भी लोग इस वक्त ड्राइव करें, क्योंकि मेरे प्रोग्राम का नाम हाईवे ड्राइव है और मैं हमेशा अमूमन उन लोगों के लिए बात किया करता हूँ जो लोग ड्राइव कर रहे होते हैं। उनको बहुत सारा कंफर्ट चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा सुकून चाहिए होता है। और डेफिनेटली आप जब अपने ऑफिस से वापस घर जा रहे होते हैं, स्टूडेंट्स अपने कॉलेज से घर जा रहे होते हैं, यूनिवर्सिटी से घर जा रहे होते हैं, तो वो ये जब बात सुनते हैं तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ फ़ायदा मुझे भी होता है, कहने वाले को और सुनने वाले को भी होता है। तो मैं आप लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप लोग मोटरवे पुलिस के साथ जितना ताउन कर सकते हैं उतना करें। सिर्फ मोटरवे पुलिस नहीं बल्कि पाकिस्तान में जहाँ भी पुलिस है आप उनको अप्रिशिएट करें। वो आपके लिए तो महाज पर खड़े होते हैं, वो आपके लिए अपनी ड्यूटीज़ पर खड़े होते हैं। और जो शख्स अपने घर से निकलता है उसका एक मकसद होता है, एक नीयत होती है कि मैं अल्लाह के लिए रज़ा के लिए काम कर रहा हूँ। तो मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि आप लोग प्रोग्राम ज़रूर सुना करें, खुसूसन जो ड्राइवर हजरात हैं जो बड़ी बसेस को ड्राइव कर रहे होते हैं, जो हाई रूफ को ड्राइव कर रहे हैं, या इसी तरह जो 22 सीटर गाड़ी है जो लोकल रूट्स पर चल रही हैं, या ऐसी रूट्स हैं जिस पर अमूमन हमने देखा है कि वो इंटरचेंज से जब चढ़ती हैं गाड़ियाँ तो वो अमूमन सामान लेके जा रही होती हैं। कोई कपड़ा लेके जा रहा है ताजर का, कोई जो है वो अपने साथ फ्रूट्स लेके जा रहा है, मतलब लोकल गुड्स लेके जा रहा है, तो वो अमूमन कभी कभी सफ़र करते हैं। तो जब वो ये हमारे प्रोग्राम सुनेंगे तो डेफिनेटली आपको ये पता चल जाएगा कि आपने किस तरह से हेल्प लेनी है और आपने किस तरह से खुद को भी सेफ़ रखना है, दूसरों को भी सेफ़ रखना है। अच्छा सर, इसमें जो अब हम क्योंकि प्रोग्राम के इख्तितामी के जाने बढ़ रहे हैं तो कुछ आखिरी गुफ्तगू आपके साथ मैं करना चाह रहा हूँ। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ सर, धुंध फॉग जो है इसकी जो एनमिटी है और इसका जो इस वक्त दौरानिया है वो पूरे जनवरी में होगा और फरवरी के कुछ इनिशियल डेज होंगे। तो सर ये जो सिंध वाली बेल्ट है, मतलब वहाँ से जो सिंध की जो आपकी आती है वहाँ से, मतलब जिसको आप कह रहीम यार खान है, सादकाबाद है, बहावलपुर है, यहाँ पे क्योंकि फॉग नहीं होती है उमूमन इन दिनों में, तो यहाँ से जो आगे एकदम जो गाड़ियाँ आती हैं तो उनको एकदम मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो क्या उनको करना चाहिए इस धुंध के अंदर, क्या क्या चीज़ें अपनानी चाहिए?
जी बहुत शुक्रिया जी क्रश साहब, आपकी आज डिस्टर्ब तो हमने किया आपको नहीं नहीं बिल्कुल लेकिन नहीं। ये है कि आप इंशाल्लाह इसका अल्लाह आपका अजर देगा जी। कि आपकी वसातत से अगर हमारे पैगाम पे किसी एक ने भी अमल कर लिया और उसकी जान को या दीगर रोड यूजर्स की जान और माल को फ़ायदा हो गया, तो इसका डेफिनेटली जो रिवार्ड है वो अल्लाह देगा। अच्छा, जो आप ये बात कर रहे हैं कि जो सिंध से या साउदर्न पंजाब से आती हैं गाड़ियाँ और जब जो ही आगे आती हैं तो आगे तो धुंध होती है, उनको क्या करना चाहिए? तो ये इस बारे में मैं ये बताना चाहूँगा कि NHMP हम सफ़र ये एक ऐप है, प्लीज़ मैं रिपीट करता हूँ, NHMP हम सफ़र ऐप, ये एंड्रॉयड फ़ोन पे डाउनलोड करें आप एप्लीकेशन को। ये आपको अपडेट रखेगी कि आगे कहीं पे रोड ब्लॉकेड है, आगे कहीं पे डाइवर्शन है, आगे धुंध है, आगे मोटरवेज बंद हैं, तो आप उससे अपडेट रहते हैं। अगर फ़र्ज़ करो आपको पता चलता है कि आगे रोड बंद है, तो आप कोशिश करें कि किसी शहर में या किसी पेट्रोल पंप पे, किसी होटल पे, वहीं पे अपनी गाड़ी स्टैटिक कर लें, वहीं रुक जाएं जब तक कि वो रोड क्लियर नहीं होता। बजाय इसके आप लाहौर के नज़दीक पहुंच जाएं, आगे पता चले कि मोटरवे बंद था, वहाँ आप फंस जाएं, वहाँ आप ना आगे जाने के लिए रहें ना पीछे के लिए। तो ये ऐप जो है आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। इस ऐप से आप जो जो हमारी ट्रैवल एडवाइजरी है उससे फ़ायदा उठाएं, उसको बिल्कुल आप अपडेट रहें, देखते रहें कि रोड की क्या कंडीशन है, आगे क्या सूरत हाल है। इस तरह से जो आगे आने वाली ट्रैफिक है वो जो है ना वो धुंध में या आगे किसी किस्म की प्रॉब्लम से बचने के लिए इस ऐप से फ़ायदा मंद हो सकती है। जी बिल्कुल लिसनर्स, NHMP नेशनल हाईवे मोटरवे पुलिस, आई थिंक यही है ना? Yes. और इसकी एब्रीवेशन है ये NHMP। आप ऐप डाउनलोड करें, मैंने हम सफ़र इसके साथ में हम सफ़र जब आप लिखेंगे तो ये गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड होगी। इसको आप ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि देखें फेसबुक तो हर बंदा इस्तेमाल कर रहा है, ट्विटर हर बंदा इस्तेमाल कर रहा है, व्हाट्सएप आपको पता है आजकल क्या हो रहा है ये तमाम चीज़ें जो हैं जब आपने यूज़ करनी है तो इसको भी इंस्टॉल करें। आपके फ़ोन में इतनी कैपेसिटी तो ज़रूर है। ट्रैवल करने से पहले आपको अपनी डेस्टिनेशन का जब पता होता है तो तभी ट्रैवल किया जाता है। आप देखें, आपने अगर उकाड़ा से रिनाला जाना है, रिनाला से आपने अख्तराबाद पत्तों की, तो आप पहले घर से नियत करके निकलते हैं कि मैंने यहाँ जाना है। तो डेस्टिनेशन का तयन से पहले सफ़र का तयन करना ज़रूरी है कि आपने किस तरह जाना है, ठीक है ना? उसके तमाम लवाजमात पूरे उस वक्त हो सकते हैं जब आपको सारी चीज़ों का आइडिया हो जाएगा, फिर आप में कॉन्फिडेंस आएगा, एतमाद आएगा, ये तमाम चीज़ें आएंगी। अच्छा, कोविड-19 के हवाले से सर आप कुछ मैसेज देंगे कि इस वक्त जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो उनको किस तरह से मतलब अपने आप को रखना चाहिए, उनके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं? क्योंकि हमने भी यहाँ पे अभी मास्क क्योंकि पहने हुए थे पहले, लेकिन क्योंकि इस वक्त हम लोग वी आर सेफ इन कंडीशन, तो ब्रॉडकास्टिंग के अंदर या टेलीविज़न प्रोग्राम्स के अंदर गवर्नमेंट ने इजाज़त दी हुई है कि आप लोग जो है वो मास्क के बगैर बात कर सकते हैं इफ़ यू आर इन अ वेरी गुड कंडीशन, यानी अगर आप हेल्थ में बहुत अच्छे हैं तो सर ये बताएं कि लोगों को इस वक्त कोविड-19 की सिचुएशन से, जो पैंडेमिक सिचुएशन उससे गुजरना पड़ा है, वो किस तरह से इससे बच सकते हैं? जी बिल्कुल जी, पेंडेमिक जो है ये अभी इसकी जो सेकंड वेव है वो जिस तरह जो एक्सपर्ट्स हैं बता रहे हैं कि ये उससे फर्स्ट वेव से ज़्यादा जो है डेंजरस है, लेकिन हम लोग बिल्कुल नहीं केयर कर रहे। तो मैं आपकी वसात से ये पैगाम भी पहुंचाऊंगा कि देखें अब हमारा जो कंट्री है, हमारे जो लोग हैं वो इतने तो अमीर नहीं है कि हर बंदा अपनी प्राइवेट गाड़ी अफोर्ड कर सके। डेफिनेटली इंसान को मूव करना पड़ता है। तो जब अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं पब्लिक सर्विस में, तो हम आपको सजेस्ट करेंगे, बल्कि जिस तरह वो हेल्थ एक्सपर्ट्स भी यही प्रेस्क्राइब करते हैं कि आप जो ये फेस मास्क है इसको ज़रूर पहनें। कोशिश करें कि जिस पब्लिक सर्विस में कंजेस्शन है, बहुत ज़्यादा रश है, आप अवॉइड करें, किसी दिगर में बैठ जाएं। बल्कि हम तो अभी हमारी जो स्क्रूटनी है, चेकिंग है PSP में बहुत सख्त है, ओवरलोडिंग को तो हम होने ही नहीं दे रहे इस पेंडेमिक में। तो आप भी कोशिश करें कि फेस मास्क, और अगर आपके पास सैनिटाइज़र अवेलेबल नहीं है तो ये जो सॉरी ये जो डिटॉल है इसका आप खुद एक लिक्विड बना के या अपने हाथों पे यूज़ कर सकते हैं। अपने हाथों को वो सैनिटाइज करते रहें, फेस मास्क पहने, और दूसरे लोगों से कम जो 6 फीट का फासला है इसको बरकरार रखें। इस तरह से आप इस कोविड से बिल्कुल छुटकारा पा सकते हैं। छुटकारा तो मतलब यही है कि अभी तक तो इसकी जो वैक्सीनेशन है वो अभी तक तो प्रॉपर इम्प्लीमेंट नहीं हुई। आप इन तदाबीर पे अमल करके आप इस कोविड से अल्लाह के फजल करम से महफूज रह सकते हैं।
जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर। अब प्रोग्राम का वक्त जो है हमें घड़ी की सुइयां जो है वो विदा कर रही हैं, लेकिन हम जो है वो इस उम्मीद के साथ, इस पैगाम के साथ आप लोगों से इजाज़त चाहने वाले हैं। कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं, कुछ ऐसी बातें भी हैं जो हमारे लिए बड़ी माइनर होती हैं, लेकिन हमारी ज़िंदगी में उनका बहुत बड़ा असर होता है। वो यही कहा जाता है कि जो छोटी से छोटी नेकी है ना, वो भी क़यामत वाले दिन उसका बड़ा वज़न होगा। तो आप जितने ज़्यादा पॉजिटिव होंगे ना, आपकी ज़िंदगी के मसले उतने कम होते जाएंगे, और जितने नेगेटिव हैं तो हर सवाल, सही सवाल का उलट जवाब आप उसको अखज़ कर सकते हैं। तो इसलिए अपना बिहेवियर अच्छा रखें। दौरान ट्रैवल अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आपका एटीट्यूड, आपका बिहेवियर बहुत अच्छा होना चाहिए, ना सिर्फ आपके इर्द गिर्द लोगों के साथ, बल्कि जो पुलिस के अहदेदारान हैं उनके साथ भी आपका रवैया बहुत अच्छा होना चाहिए। सलाम को आम करें, इससे जो है वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होती हैं। नमाज को पढ़ें, क्योंकि इससे मसाइल ज़िंदगी के ख़त्म होते हैं। मसाजिद को आबाद करने से मुआशरती मसाइल कम होते हैं, और इसी तरह उलमा के सोहबत में बैठने से जो प्रॉब्लम्स हैं उनका जो है सोल्यूशन मिलता है। और अपनी सोसाइटी में अपने आप को पॉजिटिव जो है वो रखने से ये होता है कि आपके इर्द गिर्द बेशुमार मसले खुद ब खुद ख़त्म हो जाते हैं आपके पास आने से पहले। सेकेंड थिंग इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट कि जो मीडिया के रूमर्स हैं उन पे ध्यान ना दिया करें। सोशल मीडिया का पॉजिटिव यूज़ करें। ये मेरा मैसेज तमाम यंगस्टर्स के लिए कि आप जितना ज़्यादा फेसबुक को और जितनी भी जो सोशल ऐप्स हैं उनको अगर आप पॉजिटिव यूज़ करना चाहते हैं तो वहाँ की जो खबरें हैं उनको ब्रॉडकास्ट ना करें, उनको आगे प्रोपिगेट करने से बचाएं। अगर आपके पास कोई ऐसी खबर आती भी है जिससे आपको लगता है कि आपके मुल्क में अफरा तफरी फैल रही है, उस चीज़ को ओवरकम करें, ना कि उसको ओवर स्प्रेड करें। ठीक है, तो यही पैगाम है आपके लिए। इस वक्त हम पाकिस्तान में, अल्लाह ने हमें रखा है, एक ऐसी सरजमीन दी है जिसकी बुनियाद कुर्बानी है, और हम कुर्बानी के दौर से हर वक्त गुजर रहे हैं। और मुसलमान जो है वो कभी भी नाउमीद नहीं होता, ये कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब के अल्फाज हैं। और आई होप कि उस बानिया पाकिस्तान की जो हम तस्वीर को अपने ऑफिस में आवेज़ा किए हुए हैं, हमारे पास हर जगह पर वो मौजूद हैं। तो आई थिंक उनकी बुक्स को भी हमने ज़रूर पढ़ना है और उनको अमल भी करना है। इसलिए मैं ये चाहूँगा कि आप लोग जो मोटरवे पुलिस का जो प्रोग्राम था, इनकी ब्रोशर्स आप ज़रूर लें, वेबसाइट इनकी आप जो है वो उसको अप्लाई करें। इसके अलावा NHMP हम सफ़र उसको ज़रूर डाउनलोड करें। मैंने ये फ़ीडबैक लेकर सर तक पहुंचाना है कि कितने लोग हैं जिन्होंने इस प्रोग्राम के बाद उसको किया। वो अपने स्क्रीनशॉट लेंगे और सर को मैसेज करेंगे, और फिर इंशाल्लाह हम ये देखेंगे, ये हमारा पैगाम जो है वो ईवान बाला तक पहुंचेगा। उनको पता चलेगा कि हम लोग ना सिर्फ अपनी ड्यूटीज़ को पूरा कर रहे हैं, बल्कि हमारे साथ जो ट्रैफिक पुलिस है और जो मोटरवे पुलिस है और जो हाईवे पुलिस है, ये सारी अथॉरिटीज़ मिलकर अपनी अपनी जगह पर हमें सेव करने के लिए कोशिश है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के। बहुत सारे पैगामात मैं वक्त की कमी की बिना पर अभी इंक्लूड नहीं कर पा रहा, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब मुझे मौका मिलेगा मैं आपके पैगामात घर तक लेके जा रहा हूँ, अपने पास सेव कर रहा हूँ। मैं इंशाल्लाह इनको ज़रूर ब्रॉडकास्ट करूँगा। फेसबुक लाइव पर आप लोग मेरे साथ मौजूद थे, टेलीफोनिक लाइन पर आप लोग मेरे साथ मौजूद थे। आप लोगों के मैसेजेस से बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, हमेशा मस्बत रहें, मस्बत चीज़ें सोचते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफ़िज़। नहीं सर, बेस्ट हो गया माशाल्लाह। जैसे खुशियों भरे अनमोल सर के साथ ना फोटो सेशन कर लें। ठीक है सर। उम्र भर के लिए। जी हाँ, ऐसी ही तो है नवाज स्वीट्स की मिठाइयाँ। नवाज तुम खड़े हो ना, मिठास, लज्जत और जायके जो मयार की भट्टी पर पके हों, जिनमें शामिल हो खालिस तरीन अज्जा की पूरी मिक़दार, रखा गया हो ख्याल हिफ्ज़ाने सेहत के बेहतरीन उसूलों का, रंग और खुशबू ऐसी हो जो हर मन को भाए, तभी बनते हैं वो शाहकार जो जुबान से दिल में उतर जाए। आप ही आ जाइए सर, वो मजे आप बना लें सर के मोबाइल से ना। चाहे रमज़ान मुबारक की बाबरकत घड़ियां हों या हों ये सर ये ना ज़रा ब्रोशर आप इस तरह से दे दें मुझे, ठीक है। आपकी खुशियों भरे लम्हात से जुड़ा है हमारा साथ। नवाज स्वीट्स एंड बेकर्स, चौक दीपालपुर, उखाड़ा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की हिदायत पर पेट्रोलियम मसनूआत की स्मगलिंग और गैर कानूनी फरोख्त के खिलाफ एक्शन। $2 अरब सालाना स्मगलिंग जी सर। और 200 अरब रुपए की अभी टैक्स फिर चोरी चलते हैं। रोकने के लिए पाकिस्तान कस्टम